Hello everyone, welcome to the today's session, which is regarding the practice section of English. So in this session, we will be practicing few questions of English which will be helpful for your banking exams. Okay. So in this session, we will be discussing different types of questions, such as we will be discussing the questions related to fillers, related to error detection. We will be solving a parajumble. We will be also doing the sentence completion. So let's begin with our session. So the first type of question which we will be discussing is fillers. What you need to do in fillers is in each of the following sentences, there is a blank space. Below in each sentence, there are five words out of which one can be used to fill the blank to make a sentence grammatically and coherently correct. Find the most appropriate word that fit into the blank contextually. That means you will be given a blank which you need to fill out of the given five options which you think fits there in the blank grammatically and coherently correct. Coherently means the meaning wise also it should be fit there and it should be correct meaning wise also. Okay, so let's begin. Here is your first question. Presumably, cement is not being produced for dash as in the case of rice and wheat. So here is the question. For this blank, you have been given the five words. You has to fill there the word which you think most appropriate and that is grammatically and coherently correct. Okay, so you can pause the video and answer it. After this, I will be showing the correct answer for it. So as in when I show the questions, you have to pause the video and solve it. After that, check the answer. Okay, so answer for this question is option D, that is stockpiling. Okay, stockpiling means accumulating a large stock of makes the sentence correct both grammatically and contextually. So what has been given here is presumably cement is not being produced. Cement is not produced for stockpiling as in the case of rice and wheat. So as the rice and wheat is produced, we see many a times rice and wheat is produced for stockpiling. ठीक है, stockpiling मतलब जमा करना, ठीक है, accumulate करना. हमने कई बार देखा है कि जो डीलर्स होते हैं वो राइस और व्हीट को जमा करते हैं, पर सीमेंट के केस में वैसा नहीं है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे वर्ड ग्रिलिंग लगाते हैं, ग्रिलिंग मतलब यू माइट बी नोइंग राइट, ग्रिल्ड टोस्ट, वो यहाँ पे ग्रिल करना, किसी चीज को पकाना, वो तो नहीं आएगा यहाँ पे. ठीक है, और मेकिंग एज इन द केस ऑफ मेकिंग मतलब बनाना, वो भी नहीं आएगा, किसी चीज को बनाना. कॉस्टिंग, किसी चीज का हम कॉस्टिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. ठीक है, फिलिंग, cement is not being produced for filling as in the case of rice and wheat. So ये भी यहाँ पे नहीं बैठेगा. करेक्ट सेंटेंस स्टॉक पाइलिंग. ठीक है, सो यही कॉन्टेक्सचुअली और ग्रामेटिकली करेक्ट हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The dip suggests that downbeat core sector story for July is dash to turn uplifting for August either. So here are the five sentences. आपको देखना है कौन सा इस पे फिट होगा ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्सचुअली. पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर. ठीक है, आप कमेंट सेक्शन पे आंसर्स भी लिख सकते हो. ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ई. ठीक है, दैट इज अनलाइकली.
The dip suggests that downbeat core sector story for July is unlikely to turn uplifting for August either. ठीक है. The mention of the dip at the beginning of the sentence indicates that the blank will contain a word that will be a contrast to the positive word uplifting. ठीक है, वहां पे जो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में सेंटेंस में डिप हमें यहाँ पे मिला है वर्ड, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें एक इसका कॉन्ट्रास्ट देना होगा, क्योंकि तो हमें यहाँ पे आगे सेंटेंस में अपलिफ्टिंग मिला है और सेंटेंस के स्टार्ट में हमें डिप मिला है, तो हमें अपलिफ्टिंग का कॉन्ट्रास्ट ही देना होगा ताकि हम उसे उस वर्ड से कॉन्ट्रास्ट दिखा सके उस वर्ड से. ठीक है, डिप से. ठीक है, डिप से हमें क्या पता चल रहा है, हमें एक कॉन्ट्रास्ट वर्ड देना है. अनलाइकली मेक द सेंटेंस बोथ ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट. ठीक है, तो कैसे वो करेक्ट होता है आइए हम देखते हैं. द डिप सजेस्ट दैट द डाउनबीट कोर सेक्टर, ये जो गिरावट है ये क्या हमें बताती है कि जुलाई के महीने में इस बाउंड टू टर्न, कोई बंधन है क्या जो ये डिप दिखा रहा है हमें? कोई बंधन नहीं है. बाउंड इज अ बंधन. ठीक है, किसी चीज में बंधे हुए होना. लाइकली मतलब इस चीज का होना. पर हमें डिप, हमें एक नेगेटिव वर्ड यहाँ पे दिखाना है. ठीक है, लाइकली तो पॉजिटिव वर्ड है. ठीक है, सेट, हम यहाँ पे कोई चीज सेट नहीं कर रहे हैं. इज सेट टू टर्न, नहीं. ठीक है, इज पॉजिटिव टू टर्न, ये भी वर्ड यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है. सो इज अनलाइकली टू टर्न. अनलाइकली मतलब ऐसी चीज की संभावना बहुत कम है. ठीक है, ये जो गिरावट है इस महीने की, ऐसी इस चीज की संभावना कम है कि ये अगस्त में अपलिफ्टिंग होगी, उसको ये टर्न कर देगा. इस चीज की संभावना कम है. सो ये इस सेंटेंस का मतलब है. ठीक है. Next, third sentence is, instead of paying up the public sector agencies, in up, देखिए यहाँ पे आपको सेंटेंस को पढ़ना भी आना चाहिए. Here you need to learn how to read the sentence. See, if you read the sentence continuously like this, you will be, you will, if we read it continuously like this, instead of paying up, the public sector agencies have challenged dash awards in court. अगर आप कंटिन्यूअसली ऐसे पढ़ रहे हो, इंस्टेड ऑफ पेइंग अप द पब्लिक सेक्टर एजेंसीज, सो व्हाट डज द सेंटेंस मीन? Instead of paying up the public sector agencies, that means we are paying the public sector agencies, but no, here is the comma, we has to give the break here, and we have to read like this: instead of paying up, the public sector agencies have challenged the dash awards in the court. Okay, you need to read like this. Only then you will crack this question. If you read it continuously, you will end up messing it. Okay, so pause the video and answer it. Okay, so the correct answer for this question is option B, that is arbitration. Okay, so what does this means? Arbitration, which means the use of an arbitrator to settle a dispute. Okay, instead of paying up, the public sector agencies have challenged the arbitration awards in the court. Matlab, what does the meaning convey here? The sentence conveys the meaning. Let's see what does it conveys. Instead of paying up, मतलब किसी पेइंग अप हियर मीन्स जो भुगतान करना होता है, भुगतान करने के बजाय जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं उन्होंने चैलेंज कर दिया है आर्बिट्रेटर्स के जो आर्बिट्रेटर्स है, यूज ऑफ द आर्बिट्रेटर्स, उस चीज को इन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया है. ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज है उन्हें कुछ, ठीक है, भरना होगा, कोई चीज का कंपनसेशन उन्हें भरना होगा. ठीक है, वो करने के बजाय
इन्होंने तो उसी आर्बिट्रेटर्स को ही चैलेंज कर दिया है, ठीक है, कोर्ट में। सो यहाँ पे अगर हम आर्टिकुलेशन लगाते हैं वर्ड, ठीक है, instead of paying up, the public sector agencies have challenged the articulation awards in the court. आर्टिकुलेशन यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, ठीक है। Instead of paying up, the public sector agencies have challenged the amalgamation awards in the court. Amalgamation मतलब किन्हीं दो चीजों का एक साथ होना, ठीक है। We have learned amalgamation of companies, लेकिन दो चीज का मिलना, यहाँ पे तो कोई दो चीज नहीं मिल रही है, सो अमालगमेशन तो नहीं आएगा। एक्यूजेशन मतलब किसी पे इल्जाम लगाना। द पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैव चैलेंज्ड द एक्यूजेशन अवार्ड्स इन द कोर्ट, ठीक है। हम एक्यूजेशंस को कैसे चैलेंज करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं एक्यूजेशंस को भी चैलेंज, बट ज्यादा मीनिंग आर्बिट्रेशन को सही बैठ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब जो हम कहते हैं अच्छी अच्छी बातें, ठीक है, से कहते हैं हम अफर्मेशन। तो इस चीज को हम चैलेंज कैसे करेंगे कोर्ट में, ठीक है। सो आर्बिट्रेशन ही एक ऐसा वर्ड है जो कॉन्टेक्सचुअली और ग्रामेटिकली सही बैठ रहा है, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द फिलर्स। अब हम दूसरी वैरायटी की ओर बढ़ रहे हैं। अगली आपकी वैरायटी है एरर डिटेक्शन। सो आपको इसमें क्या करना है, द गिवन सेंटेंसेस हैव बीन ब्रोकन इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। एक सेंटेंस है जो 4 सेंटेंस पे ब्रेक किया गया है, 4 पार्ट्स में, सॉरी, ठीक है। द एरर इफ एनी विल बी इन एनी वन ऑफ द पार्ट, इन एनी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी एक पार्ट में एरर होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन विच कंटेन्स द पार्ट which select the option which contains the part of the sentence which has an error, ठीक है। किसी चीज, किसी सेंटेंस में एरर होगा तो वो एरर किसके रिगार्डिंग हो सकता है, स्पेलिंग एरर भी हो सकता है, वो फिर ग्रामेटिकली एरर भी हो सकता है, या फिर वो कॉन्टेक्सचुअल मतलब मीनिंग वाइज भी वो सही नहीं बैठ रहा होगा, तो भी वो उसे हम एरर काउंट करेंगे। स्पेलिंग करेक्ट होगी, ग्रामेटिकली उसका सेंस करेक्ट आ रहा होगा, बट मीनिंग नहीं आ रहा होगा, तो भी हम उसे एरर काउंट करेंगे, ठीक है। इफ देयर इज नो एरर चूज ऑप्शन ई। अगर आपको लगता है कि चारों में से किसी भी सेंटेंस में एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन ई सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन ई आपका होगा नो एरर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन ये होगा नो एरर, सो आपको वो सेलेक्ट करना है अगर आपको लगता है तो, ठीक है। सो यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, पढ़ लीजिए उसे। एलिफेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद देयर रिलेटिव्स बट दे ऑल्सो डेवलप अटैचमेंट्स टू द एनिमल्स आउटसाइड, ठीक है। आपको यहाँ पे कैसे पढ़ना है, अटैचमेंट्स टू द एनिमल्स आउटसाइड दे आर फैमिलीज, ठीक है। यहाँ पे ये क्या दिखाता है हमें, दे आर, ठीक है, इसे दे आर की तरह में पढ़ना है। सो पॉज द वीडियो एंड आंसर को आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आंसर को फाइंड कीजिए जल्दी से। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ठीक है। इन डी रिप्लेस द कॉन्ट्रैक्शन दे आर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दे आर है विद द पॉजेसिव प्रोनाउन देयर एज द सेंटेंस शोज पोजेशन एंड टॉक्स अबाउट द फैमिलीज ऑफ एलिफेंट्स। यहाँ पे हमें सेंटेंस क्या दिखा रहा है, हमें यहाँ पे सेंटेंस पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है। मीनिंग हम पहले समझते हैं सेंटेंस का, क्या बता रहे हैं। एलिफेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। एलिफेंट्स अपने एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को मेंटेन करते हैं, किसके साथ मेंटेन करते हैं, विद देयर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स के साथ वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को मेंटेन करते हैं। बट दे ऑल्सो डेवलप अटैचमेंट्स, इसके साथ साथ वो अटैचमेंट्स को बनाए रखते हैं एनिमल्स आउटसाइड दे आर फैमिलीज, ठीक है। आउटसाइड जो उन एलिफेंट्स नहीं है, उसके अलावा जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके फैमिलीज के साथ भी वो बॉन्ड मेंटेन करते हैं। उनके, हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, उनके फैमिलीज। यहाँ पे दे आर मतलब वो हैं, ठीक है।
हम जैसे कहते हैं ना, दे आर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। दे आर गोइंग फॉर डिनर, वो लोग ऐसे जा रहे हैं, वो हैं, हमें ऐसे नहीं बताना है। यहाँ पे दे आर का मतलब वो हैं ऐसे आ रहे हैं, बट हमें क्या दिखाना है, पोजेशन दिखाना है, उनकी फैमिलीज, ठीक है, उनके फैमिलीज के साथ भी वे अच्छे बॉन्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें पोजेशन दिखाना है, तो पोजेशन किससे दिखता है, हमें देयर से पोजेशन दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देयर लगाना होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, question number 2. Such black water is a good sign because the larvae of disease bearing mosquitoes cannot survive in such high acidic water. ठीक है, pause the video and let me know the correct answer. So the correct answer for this question is option D. In D, replace the adjective high with adverb highly as it is being used to modify the adjective acidic, ठीक है। सो यहाँ पे हाई जो यूज किया गया है वो एक एडजेक्टिव है, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें इस क्वेश्चन में एडवर्ब चाहिए, ठीक है। अगर हमें सेंटेंस को करेक्ट करना है, आगे हमारे पास क्या है, एसिडिक जो हमारे पास वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, तो हमें एडजेक्टिव के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एडवर्ब देना है, ठीक है। एसिडिक जो एडजेक्टिव है उसके लिए हमें यहाँ पे एडवर्ब देना है, एडजेक्टिव के साथ हम एडजेक्टिव नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, हाई का हाईली होगा। तो अगर हम सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, सच ब्लैक वाटर इज अ गुड साइन बिकॉज द लार्वा ऑफ डिसीज बेयरिंग, जो ये काला पानी है ये एक अच्छा संकेत है, अच्छी साइन दे रहा है, किस लिए, द लार्वा ऑफ डिसीज बेयरिंग, जो लार्वा होता है डिसीज बेयरिंग मॉस्किटोज, जो मॉस्किटोज जो डिसीजेस को फैलाते हैं उनका जो लार्वा, मतलब जो बच्चे छोटे छोटे वो उनके अंडे होते हैं, वो कांट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इतने ज्यादा हाईली एसिडिक वाटर, जो पानी है वो हाईली एसिडिक है इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो एक अच्छी साइन है। तो सेंटेंस का मीनिंग ये है, ठीक है। तो इसलिए हमें हाईली यूज करना है, एडवर्ब यूज करना है, ना कि एडजेक्टिव फॉर्म यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, पीपल हु स्पेंड देयर लाइव्स studying animals don't always feel obligated to save them, ठीक है। Read the sentence carefully and let me know the correct answer for this. Okay, so the correct answer for this question is option E, because these four sentences are grammatically and contextually करेक्ट। सो इसमें ना ही ग्रामेटिकल एरर है ना ही कॉन्टेक्सचुअल एरर है, तो ये सेंटेंस चारों ही करेक्ट है। पीपल हु स्पेंड देयर लाइव्स स्टडिंग एनिमल्स डू नॉट ऑलवेज फील ऑब्लिगेटेड टू सेव देम, ठीक है, सही, सभी चीजें सही लगी हुई हैं इसमें। सो कोई भी इस पे एरर नहीं है। लेट्स कम टू द पैरा जंबल, ठीक है। पैरा जंबल में आपको क्या दिया है, ठीक है, अ सेट ऑफ 6 स्टेटमेंट्स इज गिवन, आपको 6 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आउट ऑफ विच ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन इन बोल्ड इज फिक्स्ड, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फिक्स रहेगा। पैरा जंबल का मतलब क्या होता है, आपको 6 सेंटेंसेस या फिर कुछ सेंटेंसेस दिए गए रहते हैं, वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं होते हैं, आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना होता है, ठीक है। पर आपकी हेल्प के लिए हमने क्या किया है, फर्स्ट सेंटेंस जो है वो एकदम सही है, मतलब आपका जो सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। अ, ठीक है, आप सपोज ए बी सी डी ई एफ सेंटेंसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ सेंटेंसेस हैं, तो आपका सीक्वेंस जो बन रहा है, सब
आ रहे हो सीक्वेंस FADBC, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में फर्स्ट जो सेंटेंस आएगा वो ए ही आएगा, ये फिक्स्ड है। कई बार आपको ऐसा भी दिया गया है, कई बार आपको फर्स्ट सेंटेंस आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा। तो इस बार दिया गया है तो उसको यूज करते हुए आप अपना सीक्वेंस बनाएं। रीअरेंज द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स। सो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये फिक्स्ड है। फर्स्ट आपके सीक्वेंस का फर्स्ट सेंटेंस यही आना चाहिए। सो पॉज द वीडियो, टेक योर ओन टाइम और इसे जल्द से जल्द सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ADCBFE, ठीक है। ADCBFE, ओके। लेट्स डिस्कस नाउ। ठीक है, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको फर्स्ट सेंटेंस फिक्स है वो अपने पोजीशन पे। क्या कहता है फर्स्ट सेंटेंस? विथ 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर, जो 2/3 हिस्सा है अर्थ का पानी से कवर है। इट इज एविडेंटली क्लियर दैट वाटर इज वन ऑफ द प्राइम एलिमेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। सो इससे क्या हमें क्या चीज एविडेंट होती है, क्या चीज दिखती है कि जो वाटर है, पानी है, वो एक प्राइम एलिमेंट है, मुख्य वस्तु है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। किसके लिए? जो जीवन है, लाइफ है अर्थ पे, अगर वो उसे सरवाइव करना है, अगर अर्थ पे लाइफ को कोई भी चीज की लाइफ अगर अर्थ पे सरवाइव करनी है तो उसके लिए पानी जरूरी है, ठीक है। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, सभी के लिए पानी तो जरूरी ही है। तो पानी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाद हम किस सेंटेंस को रख रहे हैं? हम सेंटेंस डी को रख रहे हैं। क्या कह रहा है सेंटेंस डी? सिविलाइजेशंस ओ देयर एवोल्यूशन टू वाटर। ओव मतलब हम किसी चीज के आभारी हैं, ठीक है। हमारे पर किसी चीज का भार है जो हमें चुकाना है। तो ये जो सिविलाइजेशंस हैं, ठीक है, मतलब ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन हम देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, ये जो अलग अलग सिविलाइजेशंस हैं, ये क्या चीज ओ कर रही हैं? अब उनका जो एवोल्यूशन है उसका श्रेय किसको जाता है? वाटर को जाता है। पानी है तभी ही ये चीज, ये जो सिविलाइजेशन से ये इवॉल्व हुई, तभी ही ये आगे बढ़ पाई। अगर पानी ही नहीं होता था तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाती थी। एवर सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है, जब से ह्यूमन काइंड की शुरुआत हुई है तब से सिविलाइजेशन अपने डेवलपमेंट का श्रेय पानी को देती हैं, ठीक है। अभी हमने लाइफ के बारे में पढ़ा फर्स्ट सेंटेंस में, तो हम उसको डी से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? हमने लाइफ के बारे में पढ़ा, तो अभी लाइफ, अर्थ पे लाइफ आ गई है। अभी लाइफ आ गई है तो वो इवॉल्व होगी, तो वो सेंटेंस हमें कहाँ पे मिल रहा है? डी में मिल रहा है वो मीनिंग, इवोल्यूशन का मीनिंग, ठीक है। पहले लाइफ आ गई, उसके बाद इवॉल्व हो रही है लाइफ, ठीक है। इससे हम इसे डी से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम कौन सा कनेक्ट कर रहे हैं? सी। वाटर इन्फ्लुएंस्ड where people lived as our ancestors formed small cities around water for agricultural reasons। ठीक है, तो अभी एवोल्यूशन हुआ, तो कैसे एवोल्यूशन हुआ वो हमें सेंटेंस सी में पता चल रहा है, ठीक है। वाटर इन्फ्लुएंस्ड वेयर पीपल लिव्ड, सो जहां जहां पे पानी था वहां पे लोग आने लगे। एज अवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने छोटे छोटे शहरों को बसाया। जहां पे पानी था उन्होंने अपने शहरों को बसाया। किस लिए? एग्रीकल्चरल रीजंस की वजह से वे छोटे छोटे शहरों को बसाते गए, ठीक है। कैसे? अभी हमने पिछले सेंटेंस में पढ़ा, एवोल्यूशन हुआ। किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ?
हमें वो सेंटेंस सी में पता चल रहा है। ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स आए, उन्होंने पानी के आसपास शहर बनाए, फिर उन्होंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को किया। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बी। दिस प्रेशियस रिसोर्स हैज नाउ बिकम अ वेरी क्रूशियल फैक्टर फॉर अवर इकोनॉमी। ठीक है, अभी एवोल्यूशन हो गया, वो सब हो गया, अब हम प्रेजेंट पे आ रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रेशियस रिसोर्स है, ये जो अमूल्य हमारा जो रिसोर्स है, वो अब एक क्रूशियल, ठीक है, क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है हमारे इकोनॉमी का। क्यों? ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि तो हमारा इंडिया जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। कई सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, अपने रोजी रोटी के लिए, अपनी आमदनी के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। हमारे इंडियन इकोनॉमी को एग्रियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम प्रेजेंट पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है? इट इज वाइटल कंपोनेंट नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, बट ऑल्सो फॉर फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमें बी सेंटेंस में क्या बताया गया? वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है। क्यों इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है वो हमें ऑप्शन सी में, ऑप्शन एफ में पता चल रहा है। वो इम्पोर्टेंट है किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए तो है ही, और किन चीजों के लिए है? इंडस्ट्री के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, ठीक है, और फॉरेस्ट के लिए है, एनवायरनमेंट के लिए, इन सभी चीजों के लिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। अगर पानी नहीं रहा तो ये कोई भी चीजें अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, next is option E. However, contrary to the past, modern society has become apathetic towards this miracle of life. ठीक है, इसके बाद हमें क्या सेंटेंस, हमें ई सेंटेंस बता रहा है? कॉन्ट्ररी टू द पास्ट, मतलब पास्ट में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और उसे बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता था, पर अब जो है मॉडर्न सोसाइटी अपेथेटिक, मतलब ठीक है, दया, जो जिसके ऊपर दया ना आती हो, उसे कहते हैं हम अपेथेटिक। बहुत ही खराब सिचुएशन पे आ गया है अब ये रिसोर्स। ठीक है, टुवर्ड्स दिस मिराकल ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जो पानी को मिराकल ऑफ लाइफ कैसे कहा गया है? पानी को। ठीक है, अब हम उसे बहुत पल्यूट कर रहे हैं, सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रेजेंट सिचुएशन को दिखा रहे हैं, अभी की तत्कालीन जो स्थिति है पानी की, वो हमें बतला रहा है। सो द करेक्ट सिक्वेंस क्या होगा? ADCBEF। ठीक है, तो हमारा ये जो है पारा जंबल का क्वेश्चन, ये भी सही से हो गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, मैं आपको दिखा के ही समझाता हूँ। ये आपको पैराग्राफ दिया है, इसमें शुरुआत में एक ब्लैंक दिया गया है। आपको पूरा पैराग्राफ को पढ़ना होगा और नीचे दिए इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होगा कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट बैठेगा। ग्रामेटिकली और मीनिंग वाइज दोनों करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, you have been given a blank here, and you has to fill this blank from with the help of this given options. Okay, you has to select the most appropriate option which fits here grammatically as well as contextually. ठीक है, that should fit here correct, with the aspect of grammar, also with the aspect of correct meaning also. Okay, pause the video. Okay, pause the video and let me know the correct answer for it. Okay, so the correct option for this is option B. Okay, so what's the question here? Some people like to go for long walks in the forest. कई सारे लोगों को फॉरेस्ट पे जाना पसंद है। where they won't see anyone for days. कई सारे दिनों तक वो लोगों को नहीं देखते हैं। कई सारे लोगों को उस जगह पे जाना पसंद है। others prefer,
तो ऐसे भी लोग हैं जो प्रेफर करते हैं अपने हॉलीडेज को स्पेंड करना इन एन एग्जिस्टिंग सिटी, उसी शहर में रह के अपने हॉलीडेज को बिताना पसंद करते हैं। ठीक है। देयर दे कैन विजिट म्यूजियम्स, जहाँ जो उसी शहर में रह के वो म्यूजियम्स विजिट कर सकते हैं, थिएटर्स विजिट कर सकते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं। स्टिल अदर्स एंजॉय, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेश एयर को एंजॉय करते हैं एट द सी शोर, समुद्र के किनारे अच्छी फ्रेश हवा को फील करते हुए अपने वैकेशंस को बिताना पसंद करते हैं। दे कैन स्पेंड देयर डेज एट द बीच एंड लिसन टू द ओशियन वेव्स एट नाइट। तो समुद्र के किनारे जो वेव्स का आवाज है वो एंजॉय करते हुए अपने वैकेशंस को बिता सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अ फ्यू पीपल डिसाइड टू स्टे एट होम एंड डू सम मेजर हाउस होल्ड प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग वीकेंड। देखिए यहाँ पे हमें स्पेंड देयर हॉलीडेज, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ हमें क्या दिखा रहा है, हॉलीडेज को कैसे लोग स्पेंड करते हैं, और हमें सेकंड सेंटेंस पे क्लियरली दिया भी गया है कि लोग हॉलीडेज को कैसे स्पेंड कर रहे हैं। तो हमें फर्स्ट सेंटेंस यही बताना होगा कि लोग कैसे हॉलीडेज को स्पेंड कर, पैराग्राफ का मीनिंग ही उससे हमें पता चलेगा। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को करेक्टली बताएंगे कि ये पैराग्राफ किसके रिगार्डिंग है, तभी जाके ये पैराग्राफ का मीनिंग करेक्ट बैठेगा। फर्स्ट सेंटेंस में तो दिया गया है लोगों को अपने काम को खत्म करना है वीकेंड्स पे, पर हम आगे क्या बता रहे हैं, लोग कैसे अपने छुट्टियों को मना रहे हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस तो सही नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस क्या है, पीपल में हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाट मेक्स अ ग्रेट वेकेशन। ठीक है। सो जो लोग हैं उनकी अलग अलग धारणाएं, अलग अलग सोच है कि एक वेकेशन, एक अच्छी वेकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, एक अच्छी वेकेशन किसे कहा जाता है, लोग कैसे एंजॉय करते हैं, किसको हम एक अच्छी वेकेशन कह सकते हैं। ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस सही बता रहा है। ठीक है। ये पूरा, ये जो सेंटेंस है ये पूरे पैराग्राफ का मीनिंग हमें बता रहा है। ठीक है। पीपल में हैव ideas about what makes a great vacation। तो इसके आगे हम बता सकते हैं कि क्या चीज, कौन सी वो चीजें हैं जो कि एक वेकेशन को, अच्छे वेकेशन को। सो ऑप्शन सी क्या बता रहे हैं, लाइफ इन अ स्मॉल अपार्टमेंट वुड साउंड टेरेबल टू मैनी। हम यहाँ पे ना ही अपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और ना ही में बात कर रहे हैं। सो ये सेंटेंस भी यहाँ पे सही नहीं है। देर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन सी साइड हॉलीडे एंड कैंपेनिंग। हम यहाँ पे कैंपेनिंग के बारे में तो बात ही नहीं है, तो ये तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो क्या, वर्किंग इन बिग कंपनी हैज मेनी एडवांटेजेस, इस पूरे पैराग्राफ से हमने कंपनी का कहीं पे जिक्र ही नहीं हुआ है। सो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो सारे ऑप्शंस को कैंसिल करते हुए जो सही ऑप्शन बचता है वो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी। ठीक है। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेशन था। सो थैंक यू, आप इस तक बने रहे लास्ट क्वेश्चन तक। होप यू लाइक दिस सेशन। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस which you will be getting in the banking sector. Okay. So hope you liked this session. If you like this session, do hit on the like button. Do like it, share the video, and do subscribe to our channel. Let's learn, so that you will be getting known about all the updates. Okay. If you like this session, do let me know in the comments section. I will be doing more such practice sessions. Okay. So hope you will find this session helpful. Till we meet in our next class, take care, everyone. Bye bye. I will be wrapping it now. Okay. So take care, everyone, and stay connected with Let's Learn.